Hello students, welcome to your geography class for lesson number 5, ocean currents. Students, we have learned the classification of the ocean currents on the basis of its depth. The ocean currents are classified into two parts, surface water current and deep oceanic water current. We have learned about the surface water oceanic current, that the oceanic current which are at the surface at the depth of almost 500 meters is known as surface water current. Even we have learned the different reasons why these surface ocean currents originates. Today we are going to learn about deep or vertical ocean currents, but before starting to that, we are going to learn the effects of ocean surface currents on human life. The first and the foremost most important thing is that ocean current especially affect the climate of the region having proximity to the sea. In cold region where warm ocean currents flows, climate become warmer. I told you earlier that mostly ocean currents जो होते हैं इनका movement कैसा होता है from equator to the pole and from polar region to the equator. इक्वेटोरियल साइड जो होता है वहाँ पर ओशनिक करंट कैसे होते हैं, वार्म करंट होते हैं. As sun rays are very perpendicular over there, so mostly there originate warm currents. In compared to that, polar region experiences less heat from the sun, as sun rays are very slant, distance is more, therefore their heat receives very less, and because of that at that place more coldness is found, and because of that the ocean current which is originated is almost cold current. So polar region cold currents and equatorial region warm current, but the movement of this oceanic current is like from equator to the pole or from polar region to the equator. That means warm currents move towards the polar region, कोल्ड एरिया में जाते हैं वो, और वहाँ पर जब वो वार्म करंट जब वो कोल्ड वाटर से मीट करते हैं तो वहाँ का वाटर क्या हो जाता है, वहाँ के वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाता है. जस्ट वाइस वर्सा, उसी की तरह से व्हेन फ्रॉम पोलर रीजन कोल्ड करंट केम टुवर्ड्स दिस इक्वेटोरियल एरिया, so what happens when this cold current meet the place of the equatorial area, so it leads to the decrease in the temperature, as कोल्ड करंट जो है वो आकर हॉट वाटर में जब क्या होते हैं मिक्सअप हो जाते हैं तो उससे क्या होता है वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. सो इन सम रीजन्स द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेज. फॉर एग्जांपल द वार्म ओशन करंट्स फ्लोइंग नियर वेस्टर्न यूरोप, साउदर्न अलास्का एंड जापानीज कोस्ट reduce the intensity of the winter. There are winter there and make them warmer. As a result, these parts do not freeze in winter. Mostly कैसा है कि विंटर सीजन में पोलर एरिया या हम ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर कोल्ड करंट होते हैं, when warm current meet to the cold current, तो क्या होता है वाटर की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कम हो जाती है, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या आता है वार्म करंट आकर मीट करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न यूरोप, साउदर्न अलास्का और जापानीज कोस्ट, यहाँ पर क्या होता है विंटर की इंटेंसिटी रिड्यूस होती है, एज वार्म करंट ने क्या कर दिया उसको जो है वो वार्म कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस एज अ रिजल्ट वी कैन सी दैट पोर्ट्स डू नॉट फ्रीज इन विंटर. Next and the most important, biotic components, these are also facing the effect of these ocean currents. Marine life and its ecosystem would have been limited in its extent. In regions where cold and warm current meet, plankton, vegetation, algae, etc. grow. I explained you earlier that plankton is a food of fishes, and the places where plankton grows, जहाँ पर उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है वहाँ पर फिशेस जो है ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट fish the places where warm and cold current meet, it is known as the growth of the plankton and it is also known as the fishing ground. क्योंकि वहाँ पर क्या होती है फ़िश बहुत ज़्यादा आकर जमा होती है तो फिशिंग करना वहाँ से क्या होता है बहुत ईजी हो जाता है. दिस इज़ फूड फॉर फिश, देयरफॉर फिश केम हियर इन अ लार्ज नंबर एंड ब्रीड.
This has in turn led to the formation of large fishing ground, Grand Bank near the North American coast in Atlantic Ocean and Dogger Bank near the European coast are some of the examples. Apart from that, if we are talking about the transportation, transportation is also affected by these oceanic currents. For transportation, ocean currents are very important because we know that transportation is also carried on the surface water, and these surface oceanic current, these are also having the movement in the upper surface of the water in between 500 kilometers. So if the transportation is done according to the flow of ocean current, the speed of ship increases and fuel is also saved. दैट मीन्स ओशन करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन में शिप जो है वो भी ट्रैवल कर रही है, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि ओशन करंट के फोर्स की वजह से शिप जो है वो अल्टीमेटली क्या होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी एंड फ्यूल जो कंज्यूम होगा वो भी क्या होगा, कम कंज्यूम होगा, बिकॉज इट गेट एक्सीलरेटेड. स्पीड जो है उसको स्पीड जो है वो किससे फास्ट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस ओशन करंट्स. सो इट एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ द शिप एंड रिड्यूस द use of the fuel, and that's why because of this ocean current we can say that fuel is also saved. Near the coast where cold current flow, the amount of precipitation is also low. For example, in Peru, Chile and arid desert of southwest Africa we can experience this type of situation where amount of precipitation is very low. At places where the cold and warm current meet, थिक फॉग इज़ फॉर्म. आपने देखा होगा विंटर सीजन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, क्लाइमेट जो है बहुत लो होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, सो एट द टाइम मोस्टली फॉग अपीयर्स. सो द प्लेसेस वेयर दिस कोल्ड एंड warm currents meet, there also we can experience this fog. Such fogs create problems for transportation. The warm Gulf Stream and the cold Labrador current meets near the Newfoundland Island. This लीड्स टू द डेंस फॉग. मोस्टली जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड जो है यहाँ पर दोनों ओशनिक करंट कोल्ड एंड वार्म दोनों भी आकर मिलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन फाइंड दैट हियर अ डेंस फॉग इज फॉर्म्ड, एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट आइसबर्ग्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द पोलार एरियाज. आइसबर्ग बर्फ़ के जो बड़े बड़े, जैसे कि रॉक के बड़े बड़े पार्ट होते हैं, ऐसे बर्फ़ के जो है क्या होते हैं, बड़े बड़े जो है वो पार्ट होते हैं, वो पूरे के पूरे फ्लोट होकर क्या होते हैं, सरफेस पर बहते हुए आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आइसबर्ग. अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ आइस, रॉक की तरह एक बड़ा पार्ट होता है आइस का, ओके, उसे कहते हैं आइसबर्ग. तो वो भी कैरिड अवे होते हैं, वो पोलार एरिया से जो है वो भी फ्लोट होकर बहकर जो है वो आते हैं ओशन करंट्स की वजह से. इफ़ सच आइसबर्ग कम अलॉन्ग द मराइन रूट्स, दे आर हज़ार्डियस टू द शिप. तो वो बहुत हाईएस्ट वेलोसिटी से क्या होते हैं, फ्लोट होकर आते हैं. तो ऐसे आइसबर्ग्स अगर कभी मराइन रूट्स पर आ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, शिप्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. मैनी टाइम इट हैपेंस दैट वो जो है वो शिप को भी नुकसान पहुंचाती है, यानी अगर वो शिप से टकरा जाए तो शिप क्या हो जाती है, पूरी की पूरी उलट जाती है. सो इट लीड्स टू द हज़ार्ड टू द शिप ऑल्सो. सो वी कैन से दैट दीज ओशन करंट्स, दीज आर बेनिफिशियल ऑल्सो फॉर अस, एंड इवन टू द सम एक्सटेंट इट इज़ hazardous to us also. Now students, we will move to the next topic, that is deep ocean currents. As the word indicates, deep, that means water currents beyond the depth of 500 meter are known as deep water ocean currents. These currents are formed due to the difference in temperature and density of water in different parts of the ocean. That means variation in temperature and density of water lead this type of formation of ocean current, which is known as deep ocean current. These are also known as thermohaline circulation. These currents flow till the seabed of the ocean. Seabed, that means to the very depth of the ocean. ओशन के एकदम डेप्थ में क्या है, जैसे लैंड पोर्शन होता है ऐसे ही टोपोग्राफी उसकी भी है. वहाँ पर हमको जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एक सी बेड मिलता है, जिसमें सी बेड यानी कि डेप्थ में जो फ्लोर होता है, लैंड पोर्शन होता है, उसे कहते हैं सी बेड, बीनीथ द सी. सो वहाँ तक का जो है पूरा ये करंट क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, एंड दे फ्लो लाइक रिवर्स कंटिन्यूसली बिलो द सरफेस ऑफ द सी. और ये क्या होता है, कंटिन्यूसली इनका फ्लो यानी क्या होता है, ये चलता ही रहता है, दे नेवर स्टॉप्स. And the difference in temperature of various part of the ocean is the major reason behind the deep sea currents. Mostly जो है वो टेम्परेचर में वेरिएशन जो है इस टाइप के डीप सी करंट्स का फॉर्मेशन का रीज़न होता है.
वार्म वाटर हैज़ लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी। इफ़ यू विल सी, तो वार्म वाटर में सैलिनिटी कम होती है, कोल्ड वाटर में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। सच वाटर कम्स टू द सरफेस ऑफ द सी, कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गोज़ डाउन। मोस्टली कैसा होता है, कोल्ड वाटर जो है नीचे चला जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और वार्म वाटर जो है वो अपवर्ड साइड रहता है, सरफेस की साइड रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। दिस मूवमेंट कॉज द डीप सी वाटर करंट्स। और ये जो मूवमेंट होता है कोल्ड वाला जो है वो वाटर उसकी जिसकी डेंसिटी कम ज़्यादा है वो नीचे की तरफ मूव होता है, और वार्म वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव होता है। ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, दिस ओनली कॉजेज द डीप सी वाटर करंट्स। Generally, the surface water near the Greenland and the European moves to the more depths. This water moves to the Antarctica at these depths. Later, the water moves to the surface. Thus, the redistribution of the ocean water keeps according. This redistribution takes around 500 years to complete. नॉर्मली जो कैसा होता है, ये एंटार्क्टिका वगैरह का पार्ट जो है वहाँ पर जो क्या होता है, नॉर्मली ये मूवमेंट जो है चलता ही रहता है। ग्रीनलैंड, यूरोप और एंटार्क्टिका, ये मूवमेंट जो है वाटर का चलता है। बट ये मूवमेंट जो है वो क्या है, पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जो है वाटर का, इसे कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट इट टेक्स 500 ईयर्स। यानी ये सारे प्लेसेस को कवर करते हुए एंटार्क्टिका तक पहुंचना, फिर एंटार्क्टिका से फिर वापस वो सारे प्लेसेस तक वो करंट्स का या वो वाटर का रीच होना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 500 ईयर्स टू कंप्लीट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेयर बेल्ट। इसे क्या कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। Importance of deep ocean currents. See, due to thermohaline circulation, movement of sea water occurs on a large scale. Thermohaline circulation यानी कि यही वाटर का जो मूवमेंट होता है, कोल्ड वाटर का डेप्थ में डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, एंड वार्म वाटर का सरफेस की साइड डेंसिटी कम होने की वजह से, ये क्या है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है। सो बिकॉज ऑफ दिस thermohaline circulation, movement of sea water occur on a large scale, and because of this circulation, ocean water moves from the surface to the bottom and from the bottom to the surface, that means vice versa। सरफेस से बॉटम और बॉटम से सरफेस की तरफ जो है वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता है। वार्म वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द बॉटम फ्रॉम द सरफेस एंड द न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड टू द सरफेस। वार्म वाटर जो है नीचे ट्रांसफ़र होता है बॉटम में, और वहाँ से जो कोल्ड वाटर जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वाटर के अंदर जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट वाटर जो है वो क्या होता है, फ्लो होकर मूव होकर जो है वो अपवर्ड साइड सरफेस की साइड आता है। तो दिस इज़ व्हाट नोन एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। सी these circular pattern of the movement of the ocean current give rise to certain peculiar feature in the ocean. They are called gears. ये जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ये सब फॉर्म होता है, फ्लो जो इनका चलता रहता है कन्वेयर बेल्ट, तो ये मूवमेंट जो है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, इसकी वजह से जो है कुछ पर्टिकुलर फीचर फॉर्म होते हैं जिसे क्या कहते हैं, गियर्स कहते हैं। द सरगेसो सी इज इन द अटलांटिक ओशन इज such an example. It is marked as a circular pattern of ocean current. See, if you will see, ये है सरगेसो सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मली ये जो मूवमेंट है ओशन करंट का, इट इज़ इन अ सर्कुलर मोशन, पूरा मिडल में सर्कल फॉर्म हो रहा है, कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना सर्कल जैसा। तो ये जो सर्कुलर मोशन में जो मूवमेंट है ओशन करंट का, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इट डज़ नॉट हैव लैंड बाउंड्रीज एंड इट इज़ ओनली सराउंडेड बाय ओशन करंट्स। देखिए नियर बाय कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, यानी कोई सरगेसा सी जो है वो क्या है, पूरा जो है वो ओशन करंट्स की वजह से, सर्कुलर मोशन में ओशन करंट्स के फ्लो की वजह से जो है वो इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो गया है, और इसके नियर बाय कोई भी जो है वो लैंड पोर्शन नहीं है। इट इज़ ओनली सराउंडेड बाय ओशन करंट्स। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सरगेसन सीवीड। द वाटर इज स्टिल हियर। This sea is 1100 kilometer wide and 3200 kilometer long. So this is an important information regarding these gears, or we can say that thermohaline circulation of oceanic water. Here, see, this is Sargassum seaweed. इसकी वजह से, that means ये जो है इनकी ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से इसे नाम दे दिया गया है Sargasso Sea. Okay, now here you are given with one column, always remember.
The ocean currents do not flow very close to the coast, they flow near the lower limit of the continental shelf. यानी कि कोस्टल एरिया से जो है वो कभी आपको मूव करते हुए ओशन करंट्स नज़र नहीं आएंगे. मोस्टली वो कहाँ पर होते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि थोड़ा सा जो पार्ट होता है डीप, अगर हम सी के जाएंगे तो पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, राइट, फिर एबिसल प्लेन, ऐसे करके अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वहाँ से इसका फ्लो जो है वो स्टार्ट होता है. बिल्कुल कोस्ट पर जो है ओशन करंट जो है वो फ्लो नहीं करते. इवन दो द वेलोसिटी ऑफ द ओशन करंट इज़ लेस, द वाटर कैरिड बाय देम इज़ इमेंस. मोस्टली कैसा होता है कि वेलोसिटी जो होती है ओशन करंट की वो कम होती है, लेकिन जो वाटर ये लेकर आते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अपने साथ जो है वाटर लेकर आते हैं. जो मूवमेंट होता है ना वाटर का, तो ओशन करंट की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती है, बट देन टू व्हेन दे ब्रिंग वाटर अलॉन्ग विद देम, so it is immense. Under the influence of the westerlies that means wind which are blowing from the western direction are known as westerlies. In the mid latitudes the ocean currents flow from west to east. जहाँ पर वेस्टलाइज होती है, मिड लैटिट्यूडनल पार्ट होता है, वहाँ पर ओशन करंट्स का मूवमेंट कैसा होता है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बट नियर द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर के नज़दीक देखेंगे, दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सी एरो मार्क्स आर ऑल्सो गिवन हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. मिडिल का पार्ट जो है वो इक्वेटोरियल पार्ट है और उसके ऊपर जो है वो मिड लैटिट्यूडनल पार्ट है. तो मिड लैटिट्यूडनल पार्ट जो है वहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट है, दिख रहा है आपको, एरो मार्क्स सारे वेस्ट से ईस्ट की तरफ है. बट इफ़ यू विल ऑब्जर्व सो यू कैन सी दैट टुवर्ड्स द इक्वेटर और नियर द इक्वेटर द फ्लो ऑफ दीज ओशन करंट्स आर मोस्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दिस लीड टू द सर्क्यूलर पैटर्न. इसकी वजह से क्या होता है? एक पूरा सर्क्यूलर पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड अवर लेसन ओशन करंट्स. I hope so that the classification, the type and the causes for the, or we can say the reason for the generation of these ocean current and effects of ocean current, all points are clear to you all. Thank you students.